So very good morning all of you, all viewers, hi and hello. So this is Dr. Rajal Shah on behalf of the Homeopathic Medical Association of India, Ahmedabad unit. I welcome you all and I also welcome Dr. Munjal Thakur sir. It's really my privilege to be here with us with the exciting insight topic that synoptic key of the materia medica by Dr. Bogar sir. सो स्टॉल वर्क के बारे में बात करना है तो एक्सपीरियंस डॉक्टर जिन्होंने इसका बहुत ही यूज किया है एंड ही इज वेरी गुड पर्सपेक्टिव विथ दिस सो वी गोइंग along with but let me introduce sir is MD in materia medica and he is PhD guide, PG guide at Ahmedabad Homeopathic Medical College and PhD guide at Parul University. He is professor of materia medica at Ahmedabad Homeopathic Medical College since 2000 and part-time consultant and visiting faculty at the Other Song International Academy of Advanced Homeopathy, Mumbai. Sir has a very good curriculum regarding academic and research experience. Sir has done presented paper at LMHI 2022 on evolutionary medicine and authentication of Hahnemann's theory of chronic disease. Sir is member of reviewed board in Journal of Integrated Standardized Homeopathy by M.L. Dhawale Memorial Homeopathic Institute, second Homeopathic Link, and many more. I think sir has done research, double-blinded study in Plata Orientalis. Sir, Plata Orientalis is the proving. Okay, sir has done proving for that. Sir, is there any material? Yes, so the proving is available online. You can just put in Plata Orientalis and put my name on it. You will get the whole proving. It is there. It's an open source access. Okay, sir. And what's about this double-blinded study we have? So we did a double-blind crossover study. Okay. So before of streptococcinum, which is also a drug proving, and the paper was recently presented at the Dubai conference, the Ayush conference. So double blind means both of us are blind. The prover is blind. The supervisor who is collecting the symptoms is also blind. It's not so that knowing. is the meaning of double blind. The meaning of crossover means what? It appears little complicated, no? Crossover means simple. Half the people at one point of time are given the medicine, half are given placebo. Right? Say for example, 2 months the symptoms come, then 1 month there is a break, and then those who had received placebo now receive medicine, and those who have received medicine now receive placebo. And again you continue to observe the proving. Right? So this is called crossing over. And so it is double blind, placebo controlled crossover method. Right? Streptococcus. हाँ, तो अभी ये मेथड से अगर हम करते हैं तो कोई भी चांस ऑफ कोई भी प्रेजुडिस का चांस नहीं होता है, बिकॉज आप टोटली ब्लाइंड रहते हो. आपको मालूम नहीं है प्रूवर को जो है उसको ड्रग दिया है, मेडिसिन दिया, और कब क्या चेंज हो गया वो भी नहीं मालूम, बिकॉज सब कुछ कोडेड रहता है. सर क्या कहाँ पे आपने ये स्टडी हैंडल? तो ये अहमदाबाद होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू एवरीवन at the Ahmedabad Homeopathic Medical College, Dr. Vinod sir, Dr. Hina madam, and Dr. Devanshu bhai for actually funding this project and being part of this whole journey. So it's a very eye-opening project for all of us. Someday in future we share about it. Yes sir, I suppose to tell कि ये भी हम सीखेंगे. अभी तो हम ये सिनॉप्टिक की को देख रहे हैं, पर दिस इज वेरी डिफरेंट एरिया विच इज ओपनिंग अप कि हम सर के पास वापस आए. ठीक है, ओके सर, ऐसे ही शुरू करते हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ व्यूअर्स हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, बिगनर्स होते हैं. इवन दो आई एम प्रैक्टिशनर, आई हैव नॉट यूज दिस बुक टू मच टू बी वेरी फ्रैंक. सो सर प्लीज आप पहले ये इसके बारे में बताइए और कैसे इसको यूज करते हैं. करेक्ट. तो थोड़ा प्रोसेस देखते हैं कि हम लोग मटीरिया मेडिका कैसे चूज करते हैं पढ़ने के लिए.
है ना। पहले ये प्रोसेस को देखते हैं, फिर ये बुक की तरफ मुड़ते हैं और थोड़ा डिटेल में जाते हैं। जी सर। तो अगर आप मटीरिया मेडिका पढ़ने जाते हो तो किसको पूछते हो आप? पहले टीचर, आप अपने प्रोफेसर। टीचर को पूछोगे और उसके भी पहले आप अपने सीनियर को पूछोगे। राइट। 4.5 साल हमारे एग्जाम से ऊपर नहीं आता है। हमारी शादी एग्जाम के साथ हो गई है। पेशेंट को भूल जाते हैं हम, प्रैक्टिस को भूल जाते हैं। एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है पास होने के लिए। तो सीनियर को भी आप पूछो तो वेगली कोई बताएगा ये वोगर साइनोप्टिक की जैसा कोई बुक है, तो इसीलिए ऑब्वियसली आपके रेडार पे नहीं आता है। सेकेंडली ओपिनियन ये रहेगा, अरे ये तो बहुत मुश्किल बुक है। और जिसने आपको बोला है कि मुश्किल बुक है उन्होंने खुद भी नहीं पढ़ा है और उनको भी उनके सीनियर ने बताया तो बहुत मुश्किल बुक है। तो वो दादी माँ की स्टोरी जैसे चलता है। तो ये चीज से थोड़ा हमें ऊपर उठना है। और स्पेशली यंग स्टूडेंट्स, आई वांट टू टेल यू अगेन कि फर्स्ट ईयर से आपका फोकस पेशेंट और प्रैक्टिस इस पर रखिए। इवन आप एनाटॉमी पढ़ रहे हैं तो अपने आप एग्जाम संभल जाएगी। अच्छा। हमारे प्रोफेसर बोलते थे कि अगर आपको मेडिसिन में फेल होना है ना तो आपको एप्लीकेशन देना चाहिए, इतना मुश्किल है फेल होना। अच्छा। तो पहले तो ये ट्रस्ट करें कि हम पढ़ रहे हैं किसी को हेल्प करने के लिए, किसी को ट्रीट करने के लिए। अगर ये एटीट्यूड से हम आगे बढ़े तो एग्जाम अपने आप संभल जाएगा, और संभल ही नहीं जाएगा यू विल स्कोर ब्रिलियंटली। दिस आई कैन वाउच बीइंग ए टॉपर ऑल अक्रॉस, और कभी एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी नहीं किया है। सच बोलता हूँ तो मैं आपको, तो अभी भी पढ़ते रहता हूँ। सर के ऐसे सर है आज जो ऐसे गाइड करते हैं। नॉट सब सर सीनियर्स यहाँ सब गुरु इज रियली लीजेंड, ऐसा कोई बात नहीं है, पर जो मोनोटोनस वे चलता है ना। हाँ, तो वो डर से उठना है। डर के आगे जीत है, ये याद रखना है। वी आर सो स्कैर्ड, नो एग्जाम एग्जाम एग्जाम, साइक किया गया है हमको। यस। दूसरा साइक किया गया फेल करेंगे। अरे भाई क्यों बैठे फेल करने के लिए किसी को? Isn't it? Examiners don't sit there to sit. अरे चलो अब आओ फेल करते हैं हम लोग। ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा नहीं होता है। Nobody sits there. I mean, nobody sits with that attitude, right? Yes sir. Each one is there to examine कि भाई तुम्हें क्या आता है, बेसिक्स आता है। अभी सल्फर है, आप हॉट पेशेंट है, उसको आप चिली बोल दोगे तो फिर गड़बड़ है, राइट? लिवर राइट साइड पे, आप लेफ्ट साइड पे बोल दोगे तो गड़बड़ है। फिर एग्जामिनर अगर फेल नहीं करता है वो अपनी ड्यूटी नहीं करता है, जी, राइट? तो पहले तो ये डर से मुक्त होना है। क्योंकि डर में जब पढ़ाई होती है ना तो वो इट्स नॉट अ जॉय। लेकिन आप जब सब्जेक्ट पे एक एक्सप्लोरेटरी व्यू लेते हो, यानी मुझे एक्सप्लोर करना है, एक एक्साइटमेंट रहता है कि इसमें क्या है। जैसे अभी भी मैं ये बुक उठाता हूँ तो आई गेट गूज बम्प्स still, okay. Even after so many years and reading it many times. So even before Rajal had just come here, I was revising, ये क्या है, मुझे पढ़ने दो। तो ये मैं पढ़ रहा था और मुझे बहुत एक्साइटिंग चीजें मिलती है। पर मैंने भी समझने के लिए 3 दिन से बाहर निकाली थी, खोला, बहुत पहले पढ़ा था, पर couldn't get anything thorough। हाँ, तो पहले तो एक हमारे माइंडसेट में से ये हमारी स्लेट को क्लीन कर देते हैं कि ये बहुत बड़ी मुश्किल बुक है, ये कुछ बड़ा स्टॉलवर्ड है, कुछ समझ नहीं सकेंगे। आई थिंक इसकी मेथड डिफरेंट है सर। आई थिंक वी विल कम टू दिस। हाँ, तो कैसे ये बुक पढ़ना है, तो पहले समझना है कि यस सर, अलग अलग मटीरिया मेडिका हमें क्यों पढ़नी है, पहले तो वो थोड़ा क्लियर हो जाए। जस्ट बिकॉज सिलेबस में है वो एक रीजन है जो पढ़ते हैं हम। दूसरा रीजन ये है कि सब ऑथर्स का देखने का नजरिया रेमेडी की और पेशेंट की ओर थोड़ा हटके होता है। राइट। इट इज लाइक 2 होम्योपैथ सीइंग द सेम पेशेंट।
Right. All of them will see the same symptom, but how you process that symptom will change from homeopath to homeopath, let alone then the remedy, right? Right. तो ये डेटा को आप कैसे प्रोसेस करते हैं, हाँ, जी. उसका आप क्या मतलब निकालते हैं, ये चीज हमारे फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ी हुई है. ओके. ठीक है, तो कैसे जब हम परसेप्ट करते हैं ऐसा सर? हाँ, तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड में से आता है तो उनके लिए जो जिस तरह से आप मेंटल सिम्टम्स देखोगे, तो जिसके पास अगर साइकोलॉजी का बैकग्राउंड है या थोड़ा एफिनिटी टुवर्ड साइकोलॉजी है, तो रेमेडी के मेंटल सिम्टम्स आप बिल्कुल वो टिल्ट के साथ देखोगे उसको, वो गलत नहीं होगा. अगर मैं हूं जो फॉर एग्जाम्पल आई एम समथिंग लिटिल मोर मैथमेटिकल अबाउट थिंग्स, जैसे ऐसे 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 लॉजिकल वे में होना चाहिए, तो वही मेंटल सिम्टम फॉर एग्जाम्पल फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ घोस्ट, क्लिंगिंग टू मदर, ये 3 अगर सिम्टम्स हम देखते हैं, तो जो व्यक्ति ये 3 सिम्टम को एक साइकोलॉजिकल व्यू पॉइंट से देखेगा तो ये बोलेगा कि ये डेवलपमेंटल स्टेज इज लाइक ए चाइल्ड विच इज एन इन्फेंट हु इज वेरी स्कैर्ड, 2 साल का है, यंग चाइल्ड, राइट, लिटिल मोर देन एन इन्फेंट, नॉट एग्जैक्टली एन इन्फेंट बट लिटिल मोर. तो उसके लिए ये डेवलपमेंटल स्टेज के लिए जी. अब मैं रहूंगा तो मेरा लॉजिकल माइंड है तो मैं उसको बोलूंगा ये टिमिड चाइल्ड है. सेकेंडली ये डिपेंडेंट चाइल्ड है, क्लिंगिंग टू मदर. हाँ, क्लिंगिंग टू मदर से. अच्छा. तो देखिए सेम इंफॉर्मेशन है, तो क्या अलग हो रहा है, हम ये सेम सिम्टम्स को किस तरह से सिंथेसाइज करते हैं. सिंथेसाइज मतलब उसमें से क्या कॉमनैलिटी निकालते हैं. जिसके पास से फॉर एग्जांपल कोई फ्रॉइडियन व्यू पॉइंट से बहुत फेमिलियर है, सब कुछ यूज करता है, तो वो रेमेडी के ये 3 सिम्टम देख के बोलेगा अरे दिस चाइल्ड इज स्टक एट द ओरल स्टेज. अब मेरे जैसा आदमी जिसको मुझे कुछ फ्रॉइड का कुछ मालूम नहीं है तो बोला अरे क्या कौन से भाषा में बोल रहे हैं, तो मुझे नहीं मालूम है, राइट. बट एट द सेम टाइम दिस इज टिमिड, दिस इज डिपेंडेंट. अगर मैं थोड़ा पर्सपेक्टिव मेरा ब्रॉडन करूं तो मुझे समझ में आ जाएगा कि भाई ये फ्रॉइड वही बोल रहा है, ओरल स्टेज फिक्सेशन जो बोल रहा है वो वही बोल रहा है फ्रॉइड. ओनली द वे यू लुक एट इट, द वे यू मेक सेंस ऑफ इट is going to be dependent on your baseline training. ठीक है. तो सेम वे हमारे ऑथर्स है, अगर हम देखेंगे तो रॉ जो डेटा है वो क्या है, तो प्रूविंग है. एवरीबडी हैज द सेम रॉ डेटा. ठीक है. अब व्हेन बोगर केम तो ही हैड हिज पर्सपेक्टिव ऑफ looking at this all these symptoms and how to deal with it, right? When Boninghason was working, same data, how he made a generalization of it, how Boger made a generalization of it. Generalization मतलब synthesis, synthesis मतलब जोड़ना. ये सब कॉमन डेटा में क्या कॉमनैलिटी है उसको जोड़ के आप 1 या 2 वर्ड में बता सकते हो, क्योंकि हमें सब कुछ तो याद नहीं रखना है और रख भी नहीं सकते हम. So it's a key symptoms we can say kind of. So 3-4 symptoms. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये बुक में जाते हैं क्योंकि आज बोगर की बारी है, तो आप सिंपल रेमेडी खोलेंगे बेलाडोना. ओके. अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप ये बुक परचेज कर सकते हैं किंडल एडिशन में, आपके फोन में हो सकता है. ये बुक बहुत बढ़िया किंडल एडिशन है. अच्छा. और इट इज वेरी वेरी चीप, एनीवन कैन अफोर्ड इट. तो देखिए बेलाडोना के पहले 2 शब्द देखिए, प्लेथोरिक कॉमा ब्रेनी. ठीक है. तो ये 2 वर्ड देके फुल स्टॉप है. भाई इसका मतलब क्या. जैसे ये बोगर की जो भाषा है ना, वो बोगर का स्ट्रेंथ है
और वो बोगर की वीकनेस भी है। वीकनेस किस तरह से? बिकॉज ये कॉमन होम्योपैथ के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। अगर ये वर्ड दिए प्लेथोरिक और ब्रेनी, नहीं पता क्या मतलब। अगर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को हम बताए कि प्लेथोरिक और ब्रेनी ये सिम्टम बेलाडोना के हैं, तो वो नहीं समझ पाएगा। अंडरस्टैंडेबल है। तो इससे ये फर्स्ट ईयर में बोगर डिफिकल्ट होता है कॉम्प्रिहेंड करना। तो थोड़ा आप सीनियर हो जाओ, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर, डेफिनेटली थोड़े एफर्ट के साथ आप पढ़ सकते हो। तो थोड़ा समझना है। देखिए कैसे लिखा है, प्लेथोरिक कॉमा ब्रेनी फुल स्टॉप। तो इसको 3 सेंटेंसेस है इसमें। फर्स्ट सेंटेंस इज प्लेथोरिक full stop. Second sentence is brainy, full stop. And third sentence is plethoric and brainy together. ये 3 शब्द को, ये 2 शब्द को, ये कॉमा की वजह से हम 3 थिंग्स में पढ़ने चाहिए। तो कैसा पढ़ना है इसको? तो कॉमा का अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अगर आप बोगर साइनोप्टिक की पढ़ते हो या फाटक मटीरिया मेडिका पढ़ते हो, ये 2 मटीरिया मेडिका में कॉमा इज टू ब्रेक द आइडिया। ठीक है, प्लेथोरा इज वन आइडिया, ब्रेनी इज सेकंड आइडिया, एंड द थर्ड आइडिया इज प्लेथोरिक एंड ब्रेनी टुगेदर। यस सर। सो 3 वर्ड्स यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो एक्सरसाइज छोटा सा आप करिए, कोई भी रेमेडी खोलिए, जहां भी आपको ये ऐसे क्लिप छोटे सेंटेंस दिखे और कॉमा है, तो उसको ब्रेक डाउन करके आप लिख लीजिए। तो आपके दिमाग को प्रैक्टिस हो जाएगी कि इसको कैसे देखना है। जी सर। जस्ट डोंट सी प्लेथोरिक कॉमा ब्रेनी, नो, प्लेथोरिक पॉज, ब्रेनी पॉज, प्लेथोरिक एंड ब्रेनी थर्ड पॉज। These 3 sentences mean the whole of belladonna. So now let us understand this further. Plethoric मतलब क्या? Plethoric मतलब somebody who is full of everything. Plethora also means congestion. Plethora also means distended. Plethora also means full of blood. ठीक है? तो अगर हम बेलाडोना को देख लेते हैं ऐसे, तो नाउ यू ओपन दिस वर्ड प्लेथोरा, तो यू अंडरस्टैंड ना बेलाडोना कैसा है। पूरा ब्लड रेमेडी है, कंजेशन है, डायलेटेड विद ब्लड है, फुल ऑफ ब्लड, रेड है, राइट, ब्लडी रेडनेस, वी ऑल नो सिम्टम ऑफ बेलाडोना। ठीक है, तो ये एक शब्द में इतना सब कह गए। सेकंड पार्ट ब्रेनी। सो अगर आप देखें तो ब्रेनी का अगर हम इंग्लिश मीनिंग निकालते हैं तो किसी को बोलते हैं एकदम ब्रेनी आदमी है, इज अ वेरी ब्रेनी फेलो। ब्रेनी मतलब बहुत इंटेलिजेंट, वेरी सेरेब्रल, वेरी शार्प, राइट। सो वी नो बेलाडोना चिल्ड्रन आर वेरी इंटेलिजेंट चिल्ड्रन। ठीक है, देन कम्स द वर्ड ब्रेनी इन बोगर्स टर्म। ब्रेनी मतलब क्या? वेर ब्रेन, इफ अगर आप बेलाडोना का फर्स्ट स्टेटमेंट आप देखें बोगर साइनोप्टिक की में, अंडर द रीजन, it will in black letters it writes nerve centers dot full stop and brain again in dark letter. So this means that brain is the sphere of action of belladonna. Now we have to understand this further कि उन्होंने ये फर्स्ट लाइन क्यों लिखा, उन्होंने इसको थर्ड फोर्थ या लास्ट लाइन में क्यों नहीं लिखा। तो समझना है कि जब आप बोगर साइनोप्टिक की पढ़ते हो तो पहले 2 या 3 लाइन, या आप देखोगे जैसे बेलाडोना में आप 5th लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 लाइन के बाद आपको डॉट 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 लिखेगा। In many remedies you will find after 3 or 4 lines only dot 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 dot. वो मैं पूछने वाली थी सर। तो जब एक बोगर ना एकदम ऐसे, wouldn't like to use this word but कंजूस थे, you will want to save all space, use minimum word, सब कुछ एकदम छोटा कॉन्क्रीट जैपनीज जैसा करके छोटा बनाना है, राइट। सो डॉट 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 मतलब क्या, ये एक पैराग्राफ खत्म हो गया, एक सेक्शन खत्म हो गया, अब नेक्स्ट सेक्शन शुरू होगा। ओके, ठीक है।
सो सिंपल, देयर इज नो बिग इंटरप्रिटेशन। ओके। थोड़ा समझ लेना है, राइट? जी। तो जब बोगर ये डॉट 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 के पहले वाला कुछ भी बताएंगे, दैट इज ट्रू फॉर द होल रेमेडी, whether it is body, whether it is mind, whether it is head, whether it is neck, whether it is lower limb, जिसे हम जब कॉलेज में पढ़ते थे तो उसे हम ग्रैंड जनरल्स बोलते थे। कोर बोल सकते हैं सर? कोर बोल सकते हैं। तो कोर पे मैं वापस आता हूँ, बाद में आता हूँ थोड़े समय के बाद। पहले इसको हम हमारे फेमिलियर टर्म्स में बात करेंगे, जनरल्स के बारे में बात करेंगे। मतलब आप इसको फ्रीली कहीं भी यूज कर सकते हो, पूरे रेमेडी में कहीं भी, ये इट इज ट्रू। यस। So now let us understand these two words, plethoric and brainy. जैसे मैंने प्लेथोरा का मीनिंग बता दिया, ब्रेनी का हम लोग ने 2 मीनिंग बता दिए। अब ये प्लेथोरिक ब्रेनी मतलब क्या? It means that this remedy has the ability to produce vascular congestion of the blood in the brain. जी, अच्छा। That means plethoric and brainy together, right? Now we go one step further. ये प्लेथोरिक ब्रेनी ये ऐसा ग्रैंड जनरल ऑफ बेलाडोना है कि उसके साथ कोई भी पर्टिकुलर सिम्टम कहीं भी हो, इट हैज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस दिस एज एन accompanying symptom. अच्छा। कंजेशन टू द ब्रेन। अगर रेमेडी बेलाडोना है तो आपको पता चलेगा कि नी पेन लेके आया है, बट ही हैज गॉट कंजेशन टू द ब्रेन। मतलब हेडेक भी है, मुंह लाल हो जाता है, राइट। हाँ। अगर उसको एब्डोमिनल पेन है, फिर ही हैज वेरी हाई ग्रेड फीवर एंड मे बी ही इज डिलीरियस, मे बी हिज आईज आर रेड। हाँ, ब्रेन इज इन्वॉल्व इन व्हाट वे? इन द वे ऑफ वैस्कुलर कंजेशन, ब्लड कंजेशन। फिर सिम्टम कहीं भी हो, ये उसका कंकॉमिटेंट हो सकता है, राइट? आप समझ रहे? तो ये 2 स्टेटमेंट, सिर्फ 2 वर्ड्स, प्लेथोरिक और ब्रेनी, इसके अंदर इतना सब छुपा हुआ है जी। दैट इज व्हाट मेक्स बोगर वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल एज डिफिकल्ट। सो अगर बोगर को पढ़ना है तो आपको मेहनत लगेगी, बैठ के शांति से आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करना है, रिकनेक्ट करना है आपको प्रूविंग के साथ। याद रखिए, एज अ रूल ऑफ थम, जितनी भी कॉम्पैक्ट होते जाती है ना मटीरिया मेडिका, लाइक एलन स्कीनो, लाइक फाटक मटीरिया मेडिका, लाइक बोरिक, it is deceptive. The more compact the materia medica is, the more concentrated it is in every word. तो आपके फोकस को हिलने का कोई भी चांस नहीं है। मतलब वो तो चीज है ही, उसको अनफोल्ड करते जाओ, कनेक्ट करते जाओ। You will have to read बॉक्स में दे दिया। Yes. देखिए ये क्या अंदाज से उन्होंने लिखा है। Why have they made this? Why Dr. Boger has made this book? कि भाई ये मेरे मेमोरी के लिए रिफ्रेशिंग है। आप समझ रहे हो? मतलब उनका एक्सपेक्टेशन ये है कि आपने पढ़ लिया है रेमेडी प्रॉपरली, और अब आपको छोटे नोट्स चाहिए। वो छोटे नोट देखने के बाद पूरा याद आ जाता है ना आपको एग्जाम के पहले, अगर आप नोट्स बनाते हैं तो। ये की नोट्स है ना? आप छोटे से नोट अपनी छोटी छोटी हैंडराइटिंग में, यू नो, आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, पूरी हैरिसन की बुक इतनी 4 पेज में पूरा एक बड़ा सेक्शन लिख दिया उसमें। नाउ व्हेन आई हैव टू रीड बिफोर एग्जाम, आई डोंट हैव टू रीड 50 पेजेस, राइट? वो सिर्फ मेरे की नोट्स, वो छोटे छोटे नोट्स पढ़ लिए। तो ये बोगर के नोट्स है, अगर हम ऐसे समझ ले तो। ठीक है? तो देयरफॉर जो मटीरिया मेडिका छोटी है और ऑथेंटिक है, उसके अंदर बहुत कॉन्सेंट्रेटेड चीज है। इट इज 50 एम पोटेंसी। तो उसको पचाने के लिए आपको मदर टिंचर तक पहुंचना पड़ेगा, उल्टा जाना पड़ेगा जी। और याद रखिए, मटीरिया मेडिका इज अ स्टडी। आराम से चाय पीते हुए आपको सेवर करना है एक एक सिम्टम, एक एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रेमेडी। डोंट बी इन अ हरी। तो
थोड़ा मगिंग के आगे जाएंगे। तो एग्जाम में आपके साथ मैं भी था, मैं कुछ ऊपर से नहीं आया हूँ। मुझे तो बहुत बहुत डरता था मैं एग्जाम, मटीरिया मेडिका के एग्जाम के पहले, बहुत मतलब बहुत। जी सर। और इतना मैं डरता था, एंड आई वाज अ गुड स्टूडेंट। तो मेरे प्रोफेसर भी डरते थे फेल करने के लिए, लेकिन दे हैड ऑल द राइट टू फेल मी बिकॉज मेरे को सिंपल चीजें भी नहीं आती थी मटीरिया मेडिका में। दैट आई विल टेल यू वेरी ऑनेस्ट कन्फेशन, इफ डॉक्टर निमेश शुक्ला, my Materia Medica teacher, a brilliant teacher, sees this, he will remember, इसको एक सिम्टम मटीरिया मेडिका का याद नहीं होता था, बिकॉज एट अवर स्टूडेंट लेवल ना मटीरिया मेडिका क्या होता है, रट्टा मारो करते हैं। हाँ सर, बिल्कुल। कोई समझाता नहीं है, और अगर समझाते भी है तो हम खुद मैच्योर नहीं होते, हम तो डूबे समझने के लिए। हाँ, 4 लाइन कर दो, हाँ उसको रिपीट लिख दो। हाँ करेक्ट, तो वही होता था। तो आई वाज आल्सो लाइक दैट। तो फाइनल ईयर की स्टोरी तो अगर मैं बताऊं ना, तो मैंने मेरी एक फ्रेंड को पकड़ लिया, उसको बोल दिया देख अब मुझे ये 400 ड्रग है ना फाइनल ईयर के, वो मुझे फाटक में वर्ड बाय वर्ड रट्टा मारने हैं, तो तू बैठ, मैं कैसा रट्टा मारता हूँ उसकी टेस्ट ले लूं। रट्टा मारने के लिए 400 ड्रग रट्टा 400 कर ड्रग सकते सर? फाटक, अरे ह्यूमन मेमोरी इज ह्यूज, कुछ भी कर सकते हैं। 400 रेमेडी आप सोच सकते हो, छोटे से छोटी बड़ी से बड़ी रेमेडी रट्टा मारी थी, उसमें मेरी फाटक मटीरिया मेडिका फट गई। और फिर मुझे टेंशन होने लगा, बिकॉज वहां अंडरलाइन चला गया नई कॉपी में, तो मैंने लिखे हुए हॉट चिली ड्रग वो भी चले गए। लेकिन कहीं सा भी करके, वो जमाने में बाइंडिंग होता था बुक का, तो मैंने वो वापस बाइंड करा लिया और फिर बच गया मैं। तो ऐसा सब करता था मैं, बट माय अपील एक्चुअली। पर सर ऑनेस्ट आपकी जो सक्सेस स्टोरी वो भी बताना, क्योंकि व्यूअर्स अभी ज्यादातर स्टूडेंट्स रहेंगे तो ऐसा ना सोच ले कि चलो ये एज में तो इतना ही करना है, ऐसा नहीं। हमें जब भी चांस मिलता है। हाँ, 2 चीज कहना चाहता हूँ मैं। सॉरी सर, और मैं ये भी बताना चाहूंगी कि हम, या सर तो मेरे से काफी सीनियर है, उस टाइम पे हमारे पास इतने अवेलेबल रिसोर्सेस नहीं थे। आपके पास अभी से है तो उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। यस सर प्लीज। 2 चीज है कि फिलहाल की जो मटीरिया मेडिका की एग्जामिनेशन सिस्टम है उससे मैं कंप्लीटली आउट ऑफ सिंक हूँ, और मैं अग्री भी नहीं करता हूँ कि ये मटीरिया मेडिका की सिस्टम स्टडी की और वाइवा की होनी चाहिए। इट शुड बी चेंज्ड एट अ फंडामेंटल लेवल। तो चेंज कैसे होना चाहिए, आप देखिए, मेडिसिन मटीरिया मेडिका रट्टा मार के क्लिनिक में प्रिस्क्राइब नहीं करता है कोई, राइट? प्रैक्टिकल। हाँ, तो प्रैक्टिकली कैसा स्किल होता है, तो मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है, और मैं मेरे स्टूडेंट को जब लेक्चर लेता हूँ तब भी मैं बोलता हूँ कि मैं, जब हम लोग ने 12th स्टैंडर्ड में बायोलॉजी के स्पॉट्स किए थे, अगर आपको याद होंगे तो, स्पेसिमेन रखे रहेंगे वहां पर, एक क्वेश्चन लिखा रहेगा और क्वेश्चन का आंसर देना है वो स्पेसिमेन को देख के। तो मैं बोलता था उनको कि अगर मैं एग्जामिनर रहता तो मैं कार्ड्स बनाता आपके लिए 10 स्पॉट्स के। आपके लिए 15 सेकंड का स्पॉट होगा एक, उसमें मैं 10 सिम्टम लिखूंगा, रेमेडी का नाम भी बताऊंगा आपको जी। अब आपको मुझे बताना है ये मीनिंग क्या है आपके लिए, ये 10 सिम्टम्स का। हाउ डू यू सिंथेसाइज दिस 10 सेंटेंसेस फॉर दैट पर्टिकुलर रेमेडी, फॉर दैट पर्टिकुलर रेमेडी, क्योंकि एक ही शब्द का शायद दोनों रेमेडी में डिफरेंट भी हो सकता है। एग्जैक्टली। तो जैसे प्लेथोरा और ब्रेनी को मैंने डिसेक्ट कर दिया, तो मैं उल्टा रखूंगा, मैं 10 सिम्टम डालूंगा, मैं बोलूंगा आप इसके 2 वर्ड बताइए जी। धीरे धीरे हो जाएंगे। आई एम श्योर एवरीबडी इज प्रैक्टिसिंग लाइक दिस ओनली, तो धीरे धीरे इट विल कम। सो चेंज कम्स स्लोली, राइट? दिस इज वे कि सर ने बताया आप ऐसे पढ़ सकते हैं। हाँ, पढ़ना हम तो कर सकते हैं अगर एनवायरमेंट नहीं है ऐसा तो भी। हाँ बिल्कुल, और एनवायरमेंट क्रिएट हमको करना है, बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट। यस सर। छोटा ग्रुप स्टडी बनाना सबसे इंटरेस्टिंग है और सबसे इम्पोर्टेंट भी है जी सर। जैसे आपने बताया बेलाडोना में, पीछे भी आपने सही बोला बिल्कुल सर, कि प्लेथोरिक ब्रेनी लिखा, उसका सारे वर्ड्स डिस्क्रिप्टिव आ रहे हैं, जैसे राइट, हॉट माउथ जो है वो पूरा का पूरा ये 2 वर्ड में बेलाडोना खत्म हो जाता है। हाँ, आप कनेक्ट कर सकते हो। हाँ, आईज में भी आप देखो, अगर आप प्लेथोरिक आईज है और ब्रेनी मतलब आई सिम्टम्स arising from brain, मतलब neurological conditions of the eye. Yes sir. Correct? Then there will be congestion. Yes. Congestion to the brain, congestion to the eyes, right? Yes sir. Eyes में congestion हो गया, sympathetic stimulation हो गया, तो क्या होगा? Pupils को dilate हो जाएंगे.
यस, देखो ये 2 शब्द करने हैं बस, और बेसिक फिजियोलॉजी नॉलेज ऐड करना है। ऐसे भी कर सकते हैं, जब जब पढ़ते जाए ऐसे, जैसे आपने समझा है कि ये डॉट Yes. डॉट के पहले वाली सारी चीज हम पीछे जो पीछे पढ़ते भी जाए आप उसमें अप्लाई देखो, करते जाए। आप अप्लाई करते जाओ, हाँ सर। राइट। तो दिस इज वन वे ऑफ स्टडिंग बोगर्स साइनॉप्टिक की, ठीक है। ओके सर। अब थोड़ा रेमेडी के अंदर ऑलरेडी घुस गए हैं, तो बाद में इंट्रोडक्शन पे आएंगे उसके। लेकिन आई वांट टू टेल यू कि ये जो बोगर साइनॉप्टिक की जो खासियत है ना, वो इनकी ये 2 जो एकदम स्टार्टिंग में 2 कॉलम्स है ना, अब आई डोंट नो हाउ आई विल शो यू दीज कॉलम्स। You I'll have to put a open picture. put a picture. मैं पिक्चर डाल दूंगी बीच में। हाँ, yes. तो आपको लेफ्ट साइड पे आपको स्पीयर ऑफ एक्शन दिखेंगे और राइट साइड पे आपको मोडालिटीज दिखेंगे। यस यस। एंड उसमें भी उन्होंने कैपिटल में लिखा है, बोल्ड में लिखा है और प्लेन उसमें लिखा है। तो मतलब आपको इम्पोर्टेंस भी पता चल जाएगा। यस, ठीक है। जैसे आप उसके स्पीयर ऑफ एक्शन बेलाडोना में देखोगे तो आपको दिखेगा कि सबसे पहला वो बोलते हैं रीजन, मतलब रीजन ऑफ अफेक्शन। ठीक है। तो नर्व सेंटर, लोकेशन, ओके, हाँ, जो हम स्पीयर ऑफ एक्शन बोलते हैं, लोकेशन बोलते हैं। तो नर्व सेंटर्स डॉट मतलब फुल स्टॉप एंड ब्रेन। अरे नर्व सेंटर्स और ब्रेन, ब्रेन आ गया तो सब कुछ आ गया ना। Nerve centers are different. CNS में brain. Correct. So brain is one part and nerve center. There are many other centers in the brain extending right from your brainstem down into the spinal cord. Yes. तो all nerve centers. ठीक है। फिर blood vessels और capillaries. Blood vessels और capillaries. Blood vessel मतलब arteries, and veins and capillaries. And especially capillaries. This is how you will read this. अच्छा, ठीक है। फिर आएगा mucous membrane in bold and then he writes mucous membrane eyes, mouth and in capital throat. अब इसको देखना है कि mucous membrane मतलब the lining, the outer surface lining which is getting in contact with the outside world, right? Mucous membrane of the eyes matlab you have the conjunctiva especially, right? Then mucous membrane of the mouth, that is the buccal cavity. Yes. And then you have of the throat. So if you look at it, eyes, yes, mouth and throat, this is the sphere of action. Sir, and especially throat. हाँ बस। अच्छा, सो जो कैपिटल पूरा है, कैपिटल मीन that is मोस्ट important. इम्पोर्टेंट। तो ये जो हमने आपने पढ़ने का सिखाया सर, दैट व्हाट यू हैव शोन दैट यू हैव टू वर्ड्स प्लेथोरिक एंड ब्रेनी, उसके बाद जो लिखा है सडन वायलेंट इफेक्ट, वो सेकंड सेंटेंस पे बाद में कैपिटल है, तो दैट इज इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। okay, but that is first core and then he is given sorry importance points. Correct. Okay. So then you have skin, then you have organs. He has just written organs. उसका मतलब क्या हुआ? Viscera. Basically organ मतलब viscera. Okay. And then he writes right side. अब आपको इसको देखना है शांति से। तो पहले तो जब आप बोगर साइनॉप्टिक की पढ़ोगे तो हमारा अटेंशन डेफिसिट जो हो चुका है ना अभी ये जमाने में शॉर्ट्स देख देख के उसको थोड़ा कंट्रोल में रखना पड़ेगा, क्योंकि आप ये बोगर साइनॉप्टिक की शॉर्ट्स के जैसे नहीं पढ़ सकते हो। हाँ, उसको बहुत, जैसा आई टोल्ड यू ना, यू टू टेक अ कप ऑफ बिग मग ऑफ कॉफी, कीप सिपिंग इट एंड देन रीड वन बाय वन एंड सेवर इट। यू अंडरस्टैंड द वर्ड सेवर इट? यू विल हैव टू इंटरनलाइज इट, यू विल हैव टू काइंड ऑफ, यू नो, आप जब चुस्की लेते हो ना चाय की तो कैसा होता है? यू एंजॉय दैट टी, राइट? सो एवरी वर्ड यू विल हैव टू। वैसे पढ़े तो कोई भी बेलाडोना का कहीं भी व्यू से पेशेंट आएगा तो कोई भी सिस्टम, कोई भी वे से कोई भी पेशेंट चाहे जो भी बताए हम पहचान पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सो द आइडिया इज savor the symptom. So now I will tell you what I will do. जैसे प्लेथोरिक, ब्रेनी एंड नाउ दैट जो मैंने आपको पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन बताया, मैं हर एक स्पीयर ऑफ एक्शन को साइड में रख के ये रखूंगा, लाइक नर्व सेंटर एंड देन प्लेथोरिक एंड ब्रेनी एंड ऑल दैट बिग एक्सप्लेनेशन आई गिव यू. Then I will take skin,
put that same of this अच्छा. and see what happens to the remedy. The remedy completely explodes. Oh. Right. Are you getting it? Yes, sir. This is very important. Ki every one spear you take, then the pathogenetic action which is written here, that you put बाजू बाजू में रखो आप. स्पीयर ऑफ एक्शन लिया आपने, जैसे आईज, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द आईज और प्लेथोरिक और ब्रेनी. मतलब में क्या, अब आप सोचो इसमें पूरा एक्सप्लेनेशन जो, मतलब द आई म्यूकस में सबसे पहला आ गया कंजंक्टिवा, तो कंजंक्टिवा आ गया. कंजंक्टिवा कैसे रहेगा? कंजेस्टेड रहेगा, रेड रहेगा, ब्लडी रहेगा. कौन सी आई रहेगी ज्यादा करके? राइट आई मोर देन द लेफ्ट आई. ठीक है. देन यू विल हैव दिस अराइजिंग फ्रॉम ब्रेन कंडीशंस, especially neurological condition, and then eye involvement is there. ठीक है. congestion है, मतलब lot of blood will be there in the eyes. Just by putting these two words and putting the spear of action, वो बाजू बाजू में रख के आप थोड़ा धीरज के साथ इसको आप समझने की कोशिश करिए. In my early days, you know, I would write down the remedies like this. अच्छा. I would write down समझने के लिए. ठीक है. So I don't expect that much with the current student, but I would love that if somebody is doing it, it would be fun for you. It will be very entertaining. आप बोल रहे तभी दिमाग में आ रहा था कि चाहे कोई भी ऑथर कैसे भी लिख रहा है, पर द कोर जो लिखा है सिनॉप्टिक में, तो आप कहीं भी पिक्चर कनेक्ट कर सकते हो. आई थिंक हम कर सकते हैं. यस. राइट. सो दिस इज very very, you know, glimpse of the Boger synoptic की beginning. तो इससे थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं और जाते हैं बोगर साइनोप्टिक की के इंट्रोडक्शन पे. ओके. अगर आप इसका इंट्रोडक्शन पढ़ो ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आई विल टेल यू दैट I wish that the current generation of students read the textbook instead of the soft copy. Yes. There is a reason why I insist on this. For two things. One, कि हमारा जो दिमाग है वो कोई कॉन्क्रीट चीज को ढूंढता है. If you have to remember it better. ये जो वर्चुअल इमेजेस हमारे सामने है ना, वो हमारे ब्रेन पे इतना इम्पैक्ट नहीं डालते हैं. जी सर. ये पहली बात है. सेकेंडली, कोई भी सॉफ्टवेयर आप लो, कोई भी यू नो ये पीडीएफ ले लो, तो आपको पता चलेगा, आप धीरज से पढ़ोगे आप, तो बहुत सारे डेटा एंट्री मिस्टेक्स है. हाँ. And most importantly, what I have found many problems is the whole introduction to the book is largely missing in most of the software. Most of the software. Maybe there may be some exceptions, but largely जो introduction है, the forward है या preface है, yes, जो इतना important है, पूरी बुक की जर्नी. हाँ. No, not just, it's not just a source of inspiration, but it also tells you कि why you have to read this book. That's what. And what is the purpose of this book? Yes. For example, in the Boger synoptic की अगर आप forward में पढ़ो, yes, मैं पढ़ रही हूँ. It says the synopsis is intended to make clear the general expression or the genius of each remedy, and thereby help the prescriber correct his bearings. The scope of its content is much enlarged by bracketing the most nearly affiliated remedies after some of the more important symptoms. This also helps in making differentiation. Yes. So the whole purpose of this book is what? To give the genius of the remedy or the grand general of the remedy. Yes. So therefore you will find that each author of the Materia Medica will have one section more enlarged and one section little atrophied.
राइट. क्योंकि उसका पर्पस है कि मुझे इस पर ज्यादा फोकस दिलाना है रीडर को, तो वो एरिया इज एक्सपेंडेड. यस. Right? Also, that does not mean that this author, in his practice, does not give importance to that atrophied area. Yes, yes, absolutely. This has to be clearly understood. Okay? He, like Boger, wants to bring to your awareness this general expression. This core genius, which I told ना, वो डॉट 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 के पहले के 4 5 6 7 8 लाइन है. Right. बेलाडोना इज अ ह्यूज रेमेडी, तो 10 लाइन. Yes. By and large, most remedies you will find first 3 or 4 lines only. तो वहां पर ये जीनियस खत्म हो जाता है. तो बोगर सर ने हमें कीज भी दे दी है शॉर्ट अक्यूट में, और पूरा पिक्चर भी दे दिया है. नहीं, पहले आई विल जस्ट मेक अ लिटिल करेक्शन अच्छा. कि पहले तो ये अक्यूट में शॉर्ट जैसा कुछ नहीं होता है. अक्यूट में होता है क्विक. क्विक. How quickly you are able to see the whole from that little bit. यस सर. It is not short. यस. It is how you are able to perceive the whole remedy Picture. from that tiny little symptom that. हाँ, तो वो कीज दे दी कम उन्होंने पहले. So he tells you कि ये जनरल फॉर्मूला है रेमेडी का. अब उन्होंने आप पर छोड़ा है बाय एंड लार्ज कि इसका आप कैसे इस्तेमाल करोगे पेशेंट को समझने में और रेमेडी को समझने में. सो वी आर ऑल्सो नॉट टॉकिंग ऑफ की नोट्स. हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट जीनस. द होल जीनियस कि ये रेमेडी का फॉर्मूला है. ये प्लेथोरिक ब्रेनी बेलाडोना का फॉर्मूला है. आप कहीं भी बेलाडोना के बारे में बात करो, स्टमक में, फुट में, टो में, नेल में, हार्ट में, ये इसका फॉर्मूला तो लगना ही लगना है. अगर ये फॉर्मूला नहीं है, दिख रहा है आपको, तो वेरी लाइकली ये बेलाडोना नहीं है और कुछ है. सही है, एब्सोल्युटली. सो कोर बोलते हैं जो core, the centerpiece of the whole remedy is very very important. ड्रग पिक्चर जो प्रूविंग पढ़ते हैं, अल्टीमेटली जो कोर है वही. ड्रग पिक्चर बोलो आप, तो आई हैव स्टॉप्ड यूजिंग टू मेनी वर्ड्स फॉर इट. आई जस्ट स्टिक, बिकॉज ये वोकैबुलरी भी बहुत प्रॉब्लमैटिक है होम्योपैथी में, बिकॉज कुछ स्टैंडर्ड नहीं है ना. अच्छा. आप जिसको कोर बोलते हो, मेरे दिमाग में कोर कुछ अलग है, आपके दिमाग में कुछ अलग है. जीनियस बोलो, मैं तो बोलता हूँ जनरल्स. जनरल मीन जनरल, कोई भी होम्योपैथ जनरल्स को जनरल ही समझेगा, कुछ और नहीं समझने का स्कोप बहुत कम है. जी, बराबर है. तो ये एक इशू है होम्योपैथी में कि हमारी वोकैबुलरी स्टैंडर्डाइज नहीं है. yes. तो नॉर्थ में, साउथ में, एवरीबडी हैज देयर ओन मीनिंग टू अ पर्टिकुलर वर्ड. सो ये क्लैरिफाई कर रहा हूं मैं कि जनरल्स की बात कर रहे हैं. फिर आप कोई भी रीजन में हो, आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ जनरल. यस सर. राइट. सो देयर इज नो स्कोप of misunderstanding this book. So you understand, when you read the foreword, you know what is the purpose of this book. सबसे पहले. फिर हम बात करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है. कोई भी आप जब मटीरिया मेडिका पढ़ते हो तो आप उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करो. किसके साथ बात करो? ऑथर के साथ बात करो. बिकॉज ऑथर ने आपको डिस्क्राइब किया हुआ है ये स्ट्रक्चर, और जो स्ट्रक्चर उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है, विच ही हैज फॉलोड थ्रू आउट द रेमेडी, बिकॉज ही हैज अ मीनिंग, ही हैज अ फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट. दैट फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट इज गेटिंग ट्रांसलेटेड इन अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर. राइट. ये आपको समझना है. तो जब तक फॉरवर्ड नहीं पढ़ोगे आप, या प्रीफेस नहीं पढ़ोगे, तो फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ोगे आप. फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ोगे तो आप अपने ऑलरेडी प्रेजुडिस माइंड से आप एंटर करोगे कोई पर्टिकुलर बुक को. मतलब इफ आई हैव टू एग्जैजरेट इट अ लिटिल बिट, आप एवरी मटीरिया मेडिका इज अ टूल, राइट. सो एक स्क्रू ड्राइवर को you may start seeing and trying to use it like a forceps which is already in your head, without trying to understand that, look, this is a screwdriver designed for this purpose. Yes. So each materia medica is like one tool.
टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द पर्पज ऑफ दैट टूल आपको प्रीफेस फॉरवर्ड पढ़ना बहुत बहुत जरूरी है. तो ये ज्यादा करके सॉफ्ट कॉपीज में नहीं होता है. अगर है आपके सॉफ्टवेयर में, ब्रिलियंट, प्लीज रीड इट. रीड 20 टाइम्स जब तक आपको ये याद रह जाए, और जब आप हर एक रेमेडी में वो फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट आप देख पाओ, अप्लाई कर पाओ. यस. ये बहुत जरूरी है जब आप कोई भी मटेरियल पढ़ते हो, स्पेशली व्हेन इट इज कमिंग टू बोगर साइनोप्टिक.